welcome back to the sacred turf of the Melbourne Cricket Ground, the birthplace of Test cricket, the home of Australian rules football, and the scene of so many famous contests between Australia and India. Just 2 years ago, Australian and Indian fans broke an attendance record that was 90 years old. Over 5 days, 370,000 people came through these gates to watch the fourth test of the Border-Gavaskar series. That is the passion and the respect between our rivalry. And it is a great honour to be joined here by two legends of Australian cricket who are both admired and revered in India too. Lisa Salekar and Steve Waugh. As a player and captain, Steve Waugh was famous for breaking free of the hotel bubble and getting out and experiencing the real India. That won him so much respect and affection among the Indian people. Back then, Steve was an exception, not anymore. These days, that connection between players and coaches from both our countries is much more the norm, and we are so much better for it. Lisa's remarkable life journey from Pune to captaining Australia is another example of that bond. That is the power of sport. It breaks down our differences and it brings us together. And we're here today to build on that. Today I announce that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. There will be a senior business delegation led by the Business Council of Australia, building on the economic roadmap that we launched just last year. And today we recognise that in both our countries, sport is a serious business as well. That's why Prime Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. And that brings me to footy. A few years ago, there were 150 people in India playing Australian rules football. Today, there are 10,000 players across 11 states. And I know that the AFL are big believers in that growth and they're investing in it. This exchange of sporting cultures goes both ways, as we saw when India brought Kabaddi here to Melbourne in 2024. And with India hosting the 2030 Commonwealth Games, Australia hosting the 2032 Olympics, and India bidding for the 2036 Olympics, which I'm certain Australia will support, there is a decade of opportunity ahead of us for more friendly rivalry, serious contests, and increased cooperation right across the board. मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी, प्रीमियर जेसिंटा एलन, खेल प्रेमी साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है।
हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। उनके जोश को देख करके लगा आज यहाँ बच्चों का एग्जीबिशन मैच नहीं है, फ्यूचर चैंपियंस का ऑडिशन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब भी मुझे मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बेनीज़ी से मिलने का अवसर मिला है, क्रिकेट हमारा नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट रहा है। अहमदाबाद में हम साथ में स्टेडियम गए थे और आज यहाँ आकर मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट महसूस कर रहा हूँ। जब हमारे बीच स्टीव वॉ और लीजा स्थालेकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद हैं, स्टीव वॉ की मेंटल टफनेस और लीजा स्थालेकर की ऑलराउंड एक्सेलेंस हमें याद दिलाते हैं कि चैंपियन बनने के लिए टैलेंट, टेम्परामेंट और टेनेसिटी तीनों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री एल्बेनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज भारत में स्पोर्टिंग टैलेंट कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यह देश के हर कोने से, हर बैकग्राउंड से उभर रहा है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। इस वर्ष भारत में मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना। मेरी तरफ से सभी विमेन खिलाड़ियों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि स्पोर्ट्स की तरह हमारी पार्टनरशिप भी हर क्षेत्र में चैंपियन बनेगी। मैं एक बार फिर खेल, युवा ऊर्जा
और भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक सुंदर अनुभव कराने के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बेनीज़ी का आभार व्यक्त करता हूं। लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस विन टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद।